Good morning, students. This is Anil Soni, and in the last class we discussed the exercise 4.2, where third question is find the value of determinant 3, 16, 19, 14, 17, 20, and 15, 18, and 21. Which we find the value of this determinant by using the suitable property. So, solution delta equals to 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18 and 21. Then we apply the suitable property and we apply the property number 6. Then what is the property number 6? If the each element of any one row or one column is multiplied by any constant number and add or subtract with the corresponding elements of the other row and other column, then the value of determinant remain unchanged. Means किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड किया जाए या उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। देन वी अप्लाई the property on the second row R2, then R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस R1 से। इससे क्या फायदा होगा? 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी इज अप्लाई ऑन द रो R3। R3 पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? R3 माइनस R1। ओके, इसमें R3 माइनस R2 नहीं करना है क्योंकि R2 के एलिमेंट्स ऑलरेडी मींस उससे भी पहले चेंज हो चुके हैं। यदि आप R3 पे R3 माइनस R2 करेंगे तो फिर आपको 15 में से 14 या 18 में से 17 या 21 में से 20 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा क्योंकि उससे पहले हम R2 पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर चुके हैं। तो R2 के एलिमेंट्स 1 1 1 अपने बन रहे हैं, तो 15 माइनस 1, 18 माइनस 1 और 20 माइनस 1 करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि R2 पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू द R1 and the same property is applied at the row R3 with respect to the R1। means R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना, जो वैल्यू आएगी उसको R2 की जगह रिप्लेस करना है। सेम R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना, जो आएगा उसको R3 की जगह रिप्लेस करना। मींस रो R2 और R3 चेंज होगी, रोज R1 में कोई चेंज नहीं होगा। सो डेल्टा इक्वल्स टू 13, 16, 19। Then we apply the R2 is replaced by R2 minus R1। सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना। 14 minus 13 1, 17 minus 16 1, 20 minus 19 1। ओके, 15 minus 13 2, 18 minus 16 2, 21 minus 19 2। ओके, एंड वी read the property number 3। क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 3? if two rows or two column are equal or same proportional then the value of determinant is equals to 0। मींस किसी भी डिटरमिनेंट की टू रोज और टू कॉलम सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। अब देखिए यहाँ सेकंड रो एंड थर्ड रो सेम तो नहीं है बट दोनों के एलिमेंट्स का रेशियो सेम है। मींस सेकंड और थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल 1/2 1/2 1/2। then by applying the property number 3 and we can say that the value of determinant is equals to 0। आप सेम भी बना सकते हैं। थर्ड रोज में से आप क्या थर्ड रोज में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही 2 को कॉमन लिया जाएगा then the remaining elements 1 1 1 then the two rows are equal, so the value of determinant is equals to 0। तो by property number 3 क्या है? if two rows if two rows or two columns elements are same or same proportional then the value
of determinant will be 0. Okay, then the value of determinant will be 0. Two rows और two columns elements are same और same proportional means किसी two rows या two column के सभी elements same हो या same proportional हो then the value of determinant is equals to 0. तो determinant की value 0 के equal होगी. तो this is very simple question. कुछ नहीं करना, R2 का property apply करनी, R2 minus R1 then the all the elements of second row will becomes 1 1 1 and same property is applied at the R3 minus R1 then each elements of row third is same 2 2 2. थर्ड रो में से 2 भी कॉमन लिया जा सकता है बट अपना सेकंड रो और थर्ड रो सेम प्रोपोर्शनल है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी if two rows and two columns are same or same proportional then the value determinant will be 0. So delta equals to 0, not it. The question number 8 is prove without expansion that this determinant equals to this means हमें इस क्वेश्चन में एक्सपेंशन नहीं करना है. विदाउट एक्सपेंशन हमें ये प्रूव करना है all the three determinants are equal. Okay, so we start the question. Solution. Let us assume let delta 1 equals to a b c x y z p q r and delta 2 equals to x y z p q r and a b c. Again delta 3 equals to y b q x a p and z c r. Okay, first of all we assume the all determinants as delta 1 delta 2 and delta 3. then to prove हमें क्या प्रूफ करना है, तीनों डिटरमिनेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है. देन delta 1 equals to delta 2 equals to delta 3. This is delta 1, this is delta 2 and this is delta 3. Then we prove that delta 1 equals to delta 2 equals to delta 3. So let us take delta 1 equals to a b c x y z p q r. Then what is the second property of determinant? The second property of determinant is that if two rows or any two columns are interchanged then the numerical value of determinant will not change but only sign will be changed. means किसी भी two row या two columns को interchange किया जाए तो determinant की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, केवल उसके साइन में ही चेंज होता है. means यदि आंसर पॉजिटिव आ रहा है then it convert into the negative sign और आंसर नेगेटिव है तो फिर वो उसके पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा. so we apply the property number second. if we interchange two rows or any two columns then the numerical value of determinant will not change. Numerical value of determinant will not change, only sign will be changed. A sign will be opposite. ओके तो इस प्रॉपर्टी से मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए मुझे डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को इक्वल प्रूफ करना है. तो डेल्टा 1 को डेल्टा 2 के इक्वल आने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ एबीसी अपने फर्स्ट रोज के एलिमेंट और वो इसमें थर्ड रो में कन्वर्ट हो रहा है. एक्स वाई जेड सेकंड रो के एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है और पी क्यू आर थर्ड रो के एलिमेंट्स है जो सेकंड रो में. तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब रोज को ही हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसमें जरूर रोज को इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी. और दिस इज ए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड. इफ वी इंटरचेंज टू रोज और एनी टू कॉलम्स then the numerical value of determinant will not change, only sign will be opposite. So we change the first row and second row.
R1, this is the interchange mark R2. Then we change R1 interchange to R2. Okay. So delta 1 equals to negative sign because two rows और two कॉलम को चेंज करने पर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है. अभी पॉजिटिव है, देन इट बिकम्स नेगेटिव. X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R. Okay. And after that, then we see that X, Y, Z in the first row A, B, C and P, Q, R. Then we apply the same property and we interchange the second row and थर्ड रो. ठीक है. देन वी अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी. हमें सेम प्रॉपर्टी यही अप्लाई करनी है. कौन कौन सी रो को इंटरचेंज करना है? सेकंड रो एंड थर्ड रो को. तो PQR will becomes the element of the second row and ABC will becomes the element of the third row and sign negative to convert into the positive sign. Okay. अगेन प्रॉपर्टी यही अप्लाई करेंगे. R2 और R3 को हमें इंटरचेंज करना है. Then R2 interchange R3. Then delta 1 equals to नेगेटिव साइन फिर से पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C. This is the determinant of delta 2. So delta 1 equals to delta 2. This is equation number फर्स्ट. मीन्स मैंने डेल्टा 1 से क्वेश्चन स्टार्ट किया था. डेल्टा 1 में मैंने 2 टाइम्स प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अप्लाई किए. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या होगा कि किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रोज को इंटरचेंज किया जाए या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए तो क्या होता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, ओनली उसका साइन अपोजिट हो जाता है. ऑलरेडी अपना डेल्टा 1 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा. मैंने फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को इंटरचेंज किया. आफ्टर देन वी अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी ऑन द सेकंड रो एंड थर्ड रो. मींस we interchange the second row and third row. Then the determinant value will not change but only sign is opposite. नेगेटिव से फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा और सेकंड रो और थर्ड रो इंटरचेंज हो जाएगी. Then X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C and this is the determinant delta 2. So delta 1 equals to delta 2. तो delta 1 delta 2 के इक्वल प्रूफ हो गया. अब हम डेल्टा 2 को डेल्टा 3 के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं और डेल्टा 1 को डेल्टा 3 के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं. तो देखिए आगे. ठीक है. ये डेल्टा 2 के इक्वल तो प्रूफ हो ही गया. अब हमें इसको डेल्टा 3 के इक्वल भी प्रूफ करना है. सो वी कैन से दैट डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3. ओके. डेल्टा 1 क्या था? डेल्टा 1 था अपना ABC XYZ ABC XYZ PQR. अब हमें इस डेल्टा 1 को डेल्टा 3 के इक्वल भी प्रूफ करना है. तो आप डेल्टा 3 को देखिए इधर और देखिए कि इसमें क्या हो रहा है. ABC रो के एलिमेंट है बट यहाँ ABC कॉलम में चेंज हो गए. XYZ रो है, XYZ कॉलम में चेंज हो गए. PQR रो है, PQR कॉलम के एलिमेंट्स में चेंज हो गए. तो रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं. तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 1 है. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है? इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम मींस उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना के डिटरमिनेंट लिया जाए देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन अनचेंज. मींस रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता. देन वी अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बिकॉज़ यहां ABC XYZ PQR रोज के एलिमेंट है बट हमें डेल्टा 3 के इक्वल प्रूफ करना वहां कॉलम के एलिमेंट्स में चेंज हो रहे हैं. ओके. प्रॉपर्टी 1 क्या थी? इफ we interchange the rows and column then the value of determinant will remain unchanged. ओके. तो हमें प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई करते हैं. तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू
first row convert in the first column, second row in second column and third row in third column. Okay, so the value determinant will not change. अब आप देखिए मुझे आंसर उसके इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या है y x z, y x मतलब x y z अपना फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, एबीसी सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को चेंज कर दूं, और जैसे ही फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को चेंज करूंगा अप्लाई होगी प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी टू रोज एंड टू कॉलम को चेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता बट उसका साइन अपोजिट हो जाता है। तो बाय प्रॉपर्टी टू, तो आपको यहाँ स्टेटमेंट भी लिखना है, we interchange the two rows or any two column, then the numerical value or determinant will not change, only sign is opposite. So मैं first column और second column को interchange कर रहा हूँ, C1 interchange to C2, then we apply the negative sign because sign will become opposite, x y z a b c d q r. Okay, clear? Then we change. Then we apply the property number second. First column and second column are interchanged. Then the numerical value are not same but sign is opposite. अब देखिए अभी भी आंसर उसके इक्वल आया क्या? नहीं आया। क्या करना है? अब देखिए x y z फर्स्ट कॉलम में आ गया, a b c फर्स्ट सेकंड कॉलम में आ रहा है, p q r थर्ड कॉलम में आ रहा है। बट अब हमें x a p फर्स्ट रो में लीजिए, x a p देखिए, x a p सेकंड रो में आ रहा है, y BQ फर्स्ट रो में आ रहा है, XAP सेकंड रो में आ रहा है, YBQ फर्स्ट रो में आ रहा है, ZCR सेम है। तो अब क्या करना, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देते भाई बाय प्रॉपर्टी सेकंड, R1 इंटरचेंज टू R2 बाय प्रॉपर्टी सेकंड, क्या R1 इंटरचेंज टू R2 मींस फर्स्ट रो और सेकंड रो को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट रो एंड सेकंड रो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल सेम बट साइन बिकम्स अपोजिट, मींस नेगेटिव से क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर इंटरचेंज, XAP will become the second row and YBQ is in the first row, YBQ XAP ZCR। अब देखिए ये अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम डेटा 3 में चेंज हो गया नहीं हो गया, YBQ XAP and ZCR। So without any expansion we prove that delta 1 equals to delta 2 equals to delta 3, so it can be write as delta 3, delta 1 equals to delta 3, this is equation second। Then we can say that from equation first and second क्या डेल्टा 1 डेल्टा 2 के इक्वल है, वही डेल्टा 1 डेल्टा 3 के इक्वल है, तो मींस डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3। यहां मैं डेल्टा 1 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, डेल्टा 2 से कर सकता हूं, बिकॉज़ डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2, सो डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 एंड डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3, सो डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3, हेंस प्रूव विदाउट एनी एक्सपेंशन। ओके, क्लियर? डेल्टा 1 को डेल्टा 2 के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 टाइम्स अप्लाई की थी, ठीक है। पहले फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया, फिर सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज किया। डेल्टा 1 को डेल्टा 3 के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अप्लाई की थी, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया था, देन नॉट चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आफ्टर दैट वी अप्लाई द प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ 2 टाइम्स। फर्स्टली हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज किया था, बाद में हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया था। सो लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया था डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3, नॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव दैट डिटरमिनेंट b plus c, c plus a plus b, a plus b, b plus c, c plus a, abc are equals to aq plus bq plus cq minus 3abc। मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। प्रूफ तो में हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्रूव। ओके, अब हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू
को सॉल्व करना, सॉल्व करके इसका एक्सपेंशन करके हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, देन टेकिंग left hand side, what is the left hand side? b plus c, a plus b, a, c plus a, b plus c, b, a plus b, c plus a, c, and it is assumed delta। इस डेल्टा की वैल्यू मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के इक्वल प्रूफ करनी है। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करना। आप सोचिए कि ऐसा इसमें क्या किया जाए, किस रो या किस कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अदर रो या कॉलम में ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए, या प्रॉपर्टी कॉलम पे भी अप्लाई हो सकती है, जिससे हमें इस डिटरमिनेंट की या तो मैक्सिमम एलिमेंट्स हम जीरो बना पाए। क्योंकि जीरो बनाने से हमें क्या फायदा होता है कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स जीरो होते हैं, हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उसी रो या उसी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करके फाइंड कर सकते हैं। या किसी भी टू रो या किसी भी टू कॉलम्स के एलिमेंट्स सेम बना लिए जाए, क्योंकि सेम होने पर टू रोज या टू कॉलम सेम हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली हम जीरो लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 3। तो हमें यही देखना है कि प्रॉपर्टी 6 नंबर की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐसा हम क्या करें, इसमें या तो मैक्सिमम एलिमेंट जीरो बन जाए, जीरो नहीं बने तो सभी के एलिमेंट्स को हम सेम बनाएंगे। तो देखिए मैं, ये अपनी फर्स्ट कॉलम है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। यदि मैं थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दूं, थर्ड कॉलम को मैं फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दूं, C3 को किस में ऐड कर दूं, C1 में, और ये वैल्यू किसकी जगह रिप्लेस करनी है, मुझे C1 को रिप्लेस करना है किससे, C1 प्लस C3 बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 ही है अपना, किसी भी कॉलम को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ मैंने C3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, C3 बन जाए C3, ठीक है। C3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके उसको मैंने फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, और जो ये वैल्यू आएगी उसको मुझे कौन से कॉलम को रिप्लेस करना है, किसकी जगह रिप्लेस करना है, C1 को ही रिप्लेस करना है। तो C1 चेंज होगा, प्रॉपर्टी C1 पे अप्लाई हो रही है, देन चेंज द C1 बट C2 एंड C3 इज रिमेन अनचेंज। तो मैं C2 और C3 को लिख देता हूं A प्लस B, B प्लस C, C प्लस C, क्योंकि प्रॉपर्टी C1 पे अप्लाई हो रही है इसलिए चेंज भी C1 होगा, C2 और C3 में कोई चेंज नहीं होगा। बट C1 पे क्या अप्लाई करनी है, C3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करना है, और जो आएगा उसको C1 को उससे रिप्लेस करना। A में B प्लस C ऐड किया, A प्लस B प्लस C, ओके। B में C प्लस A ऐड किया, A प्लस B प्लस C, A प्लस B में C ऐड किया, A प्लस B प्लस C। अब देखिए C1 पे C1 प्लस C3 अप्लाई करने से क्या फायदा हुआ है कि फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स सेम बन गए हैं, सो दैट वी टेक द कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। इस समय फर्स्ट कॉलम में से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले सकता हूँ। B प्लस C में A ऐड किया, A प्लस B प्लस C प्लस A में B ऐड किया, A प्लस B प्लस C, A प्लस B में C ऐड किया, A प्लस B प्लस C, टेकिंग कॉमन A plus B plus C from C1. C1 means first column. Then delta equals to A plus B plus C. Then the value of the first column element is 1, 1, 1. A plus B, B plus C, C plus A. A, B, C. Then question become very simple. कैसे? फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए, और ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5th किया था, ठीक है। 4.2 का भी क्वेश्चन नंबर 5th बन गया, सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्या था उसमें, इन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू को मैं जीरो बना सकता हूं। कैसे, ये 1 अपने सेकंड रो में है और ये 1 अपना थर्ड रो में है, तो इसको जीरो कैसे बना सकता हूं मैं, R2 माइनस R1। सेकंड रो में से फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन 1 माइनस 1 बिकम्स 0। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई ऑन द थर्ड रो, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, सो दिस एलिमेंट विल बिकम ए 0।
so that we doing the expansion according to the first column after applying this property. तो फर्स्टली मैं इन दोनों को, तो किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 1 1 1 होने के बाद क्वेश्चन करना हमारे लिए सिंपल होता है। कैसे? इन दोनों वंस को मैं जीरो बना सकता हूँ। कैसे? R2 minus R1 then it becomes 0 and R3 minus R1 then it is also become 0. So property apply, R2 पे अप्लाई करता हूँ मैं R2 minus R1 एंड जो वैल्यू आएगी उसको R2 की जगह रिप्लेस करना है एंड R3 पे भी अप्लाई करते हैं R3 minus R1 then R2 and R3 are changed but R1 is not changed, so delta equals to A plus B plus C 1 A plus B A then 1 minus 1 0 R2 minus R1 R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना 1 minus 1 0 B plus C में से A plus B को माइनस करेंगे, साइन चेंज होगा, B से B कट हो जाएगा देन C minus A, ओके B minus A and we apply the property R3 minus R1 1 minus 1 0 C plus A minus A minus B then A is cancelled with A then C minus B and C minus A, okay then the two elements of first column will become 0, so we expand according to the first column क्योंकि second और third elements के according या corresponding मुझे expansion नहीं करना होगा क्योंकि expansion करने पे कुछ भी है but वो 0 से multiply होके 0 हो जाएगा। expand according to first column C1 delta equals to A plus B plus C। साइन आपको पता ही कैसे लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मींस 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, 0 के साथ नेगेटिव और 0 के साथ पॉजिटिव, ओके देन 1 एंड द determinant of the remaining elements removing the first row and first column means 1 लिया है तो 1 वाली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है देन C minus A B minus A C minus B and C minus A, ओके देन 0 बट 0 के साथ कुछ भी हो वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। डेल्टा इक्वल्स टू A plus B plus C देन 1 C minus A 2/2 के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बहुत सिंपल होता है। फर्स्टली हम प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी अप्लाई द नेगेटिव साइन एंड दीस एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड C minus A to C minus A देन C minus A का होल स्क्वायर माइनस C minus B B minus A डेल्टा इक्वल्स टू A plus B plus C C minus A का होल स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC, ओके C स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा इसलिए 1 को लिखना कोई नेसेसरी नहीं है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC C माइनस B को मल्टीप्लाई करना है B माइनस A से देन अप्लाई द नेगेटिव साइन, ओके C को किया BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर प्लस AB and we change the sign because of the negative sign, delta equals to A plus B plus C A square plus C square minus 2AC minus BC minus plus AC plus B square minus AB then delta equals to A plus B plus C A square plus B square plus C square A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus 2AC and plus AC minus AC. This is the identity of AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC. Okay. So we prove the question AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC. A plus B plus C A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus AC is the identity of AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC। और यदि आपको ये आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आप
ए को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को भी और सी को भी, तो इसमें काफी टर्म्स कट हो जाएंगे और जो भी रिमेनिंग टर्म्स होगी वो आपस में ऐड होकर लास्ट अपना आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ जाएगा। सो हेंस प्रूव, अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया, नॉट इट।